Okay, Bismillah Rahman Rahim. We start from where we have left. We have still a question to answer. Okay, now we start with the question and answer. The last question was who will decide which key to use? Because it is a standard who primarily give the for the implementation of this setup. This setup is primarily form of a standard. So the standard says that these Alice and Bob are just the names of the entities. They are not the real persons. They are primarily the computer net nodes. For example, जो चीज़ पहले अंडरस्टैंड करने वाली है, these are the fake characters. और ये characters जो हैं ये primarily this is a mobile device which is held by the Alice, and this is another mobile device which is held by the Bob. So these mobile devices are communicating with each other by following an algorithm of encryption. जैसे WhatsApp पे ये बात कर रहे हैं या Zoom का एक सेशन चल रहा है, तो so the encryption is working in a way that the अगर Zoom की बात करें तो so the Zoom issues a public key, and that public key is used to encrypt the information, and then there is a server, a system जिसमें जो है एक Zoom सेशन के लिए रूम बनाया गया है, and this mobile is connected to that process which is running inside जो इस वक्त हमारा ये सेशन चल रहा है, and similarly this is also connecting with this. So the communication between them is primarily enforced in a way, हम assume करें अगर ये private public जो इसको PKI इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सो प्राइवेट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये यूज हो रहा है, देन द पब्लिक कीज आर फर्स्ट गिवन टू दीज मोबाइल फोन्स. So these mobile phones has the public keys of the Zoom. That's a PZ. It has a public key of the Zoom PZ. Then there is a private key is here, and every communication which is coming from both parties is primarily decrypted at this place. Okay. Then there is a variant जो कि वेब कम्युनिकेशन में यूज होता है. Then a session key is generated, and that session key is given to the Bob and given to the Alice क्योंकि इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है ना. So that session key is used as a private key at the Alice and at the Bob's end. तो उससे क्या होता है, whenever this communication comes to the Bob and that communication comes to the Alice, that key is used to encrypt and decrypt the information. वो हम इस सेशन में नहीं पढ़ रहे, हम इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट की जो कॉम्बिनेशन है उसको पढ़ रहे हैं. So the answer to the Kosar question is it is the standard who actually devised in a way कि जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पब्लिक की इज विद एवरीवन एंड द प्राइवेट की इज द वन जो कि रिसीवर है. दैट इज द केस. जी कौसर, आपको समझ में आ गया ये आंसर? जी सर, समझ में आ गया. But remember there are variants, and these are variants are primarily made by different organizations जो कि इन सर्टिफिकेट्स को यूज करती हैं और इनको जनरेट करती हैं. इवन जो है वो डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आईओटी डिवाइसेस, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सर्टिफिकेट्स.
और दिस इज द लास्ट स्लाइड जो हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टू डिस्कशंस जो हमें असाइनमेंट 3 और जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से करनी है। सो डिजिटल सिग्नेचर वी डिस्कस, जैसे हम एक डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, सो द कंसेप्ट इज द सेम बट द इम्प्लीमेंटेशन इज ए समवट डिफरेंट। जब आपके पास कोई कम्युनिकेशन होती है, लेट्स से हमदर्द यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आता है, तो यू वेरीफाई के लिए उसके लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ है, और किसी जगह पे किसी अथॉरिटी ने जो है वो उस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने उसके ऊपर कोई इनिशियल वगैरह भी किए हुए हैं। तो these initials are primarily the signatures. The signatures verify कि हमारे पास जो है वो signature verify that we have primarily the information is coming from the authority. So that's why there is a proof of sender कि ये information जो है ये sender नहीं भेजी है, और sender जो है ना वो deny नहीं कर सकता इस चीज़ को। So this is the concept behind it. कि जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर फेक था, वो ऑर्डर बन के जब डिलीवर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो फेक है। सो दैट्स केस डिजिटल सिग्नेचर्स द साइन डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड सो दैट इट्स अ प्रूफ के जो है ये जब ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई बात भेजेगी तो वो प्राइमरी रिटर्न नहीं होगा, वो ये नहीं कह सकेगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट था, ये ऑर्डर फेक था। So the digital signatures primarily ensures that the sender is जो sender जो है उसका primarily वो validated sender। अभी तक तो हम सिर्फ रिसीवर की या दोनों की बात कर रहे थे, अब सिर्फ सेंडर की बात हो रही है, अब सेंडर की बात हो रही है। सेंडर कैनॉट डिनाई कि ये उसने जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। So this is the concept behind it, but actually how it is implemented is a different thing. Digital code generated and authenticated by the public key encryption is attached to an electronically transmitted document to verify its contents and the sender's identity. तो इसमें होता क्या है, अगर आप देखें तो there is a hash algorithm. So every document जब उसका एक हैश जनरेट किया जाता है, then this hash is merged with the sender's private key. Okay, then sender's private key is used to sign that hash plus the document. So the hash and the document then combined with the sender private key, and then they become what is called a signed document. So remember the sender is using his जबकि इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसमें जो है वो sender is using the public. So the private key is primarily the sender's identity. When the algorithm finally generates a signed document, then this signed document is primarily sent, and receiver when receive the document, this signed document is also go through other mechanism in which it is then again encrypted with the sender public key, and then a hash value is generated, and at the receiver point the things become reverse, इनको reverse implement किया जाता है और उसके बाद जो है वो document जो है वो इसको accessible हो जाता है। The only thing is there is addition of a hash value and use of a sender's private key. थोड़ा सा एल्गोरिदम जो है चूंकि मल्टीपल स्टेप्स है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानना या सीखना तो वो बुक में भी रेफर कर सकता है और इंटरनेट पे भी रेफर कर सकता है। सो वी एंड द कंसेप्ट एट द डिजिटल signature in the cryptography area.
So in addition to the public and private key, there is a hash algorithm is used. So this ends our today's session. If there are any questions. Okay, if there are no questions, then we move towards our next agenda point. And in our next agenda point, we are interested to primarily okay, these are the students which are with us at this point in time. So we need to attach the students with the groups. तो मैं स्टूडेंट से पूछता जाता हूँ, वो मुझे बताते चले जाएं. So first of all, if there is any senior student present. Ume Habiba है. Ume Habiba is also from the junior batch. So unfortunately no senior batch student is present here. तो हम इस सिलसिले में क्या करें? क्या उन्होंने बाइकआउट कर दिया हमारा? So क्या हमारे ग्रुप में ये लोग एडिट नहीं है? Yes, there are 21 participants, so everyone is added. Maybe they are not they want to do it in a different way. Okay, we start from here. Okay, ग्रुप बता दीजिए आपके कौन-कौन से जो आपने बनाए हुए हैं. सर कौसर, निम्रा और उम्मे हबीबा का एक ग्रुप है और हमादुद्दीन और वर्दा सादत का एक है. कौसर, निम्रा, second group is Hamad and only one group is left. So I asked with Hamad and Varda if they can primarily accommodate Rushna. So we have two groups, or we then go towards the three groups. Okay, we go for the three groups. Then we have three member group. एक जिसका 3 member group है. सर तो आपने कहा था कि मैं मर्ज करना चाह रहा था लेकिन मर्ज हो नहीं रहे, और दूसरी चीज ये कि वो फाइनल ईयर वाले तो हैं नहीं. अब क्या करें, आपको मूव फॉरवर्ड तो करना है ना. सर तो आप ग्रुप्स बना दें, अगर उनके साथ बनाना चाह रहे हैं जैसे भी, तो इन्फॉर्म हम ग्रुप में कर देंगे. तो मेरे बट साथ स्टिल अगर सर वो लोग क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो फिर हमारा तो ऑलरेडी उनसे इतना कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन तो है नहीं. तो फिर एक काम कर लेते हैं. जैसे निम्रा, कौसर और हबीबा का तो एक ग्रुप बना हुआ है ना, बिल्कुल स्टेबल है, तो Okay. उनको किसी में भी ऐड ना करें, अगर वो तीनों एक साथ ही काम कर लें. वेट कर लेते हैं. आप लोग एक काम करें, आप लोग अपने प्राइवेट ग्रुप में डिस्कस करें. अगर ग्रुप्स को बेहतर बना सकते हैं, 2 ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, सो आई असाइन द असाइनमेंट नंबर 3. असाइनमेंट नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि बाकी असाइनमेंट्स और क्विजेस तो आसान है. दे आर हैविंग नो इश्यूज. ओके,
ओनली इशू इज विद द असाइनमेंट नंबर 3। तो असाइनमेंट नंबर 3 को हम वर्कआउट कर लेते हैं कि उसमें हमें करना क्या है। ओके, सो द ग्रुप्स आर क्लियर है। एक मिनट में इसको ठीक हो गया। असल में मैं ये चाह रहा था कि आप लोग एक ऐसा वर्क करें जिसमें आप जो है एक जो आपका FYP है जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको प्राइमरीली हाईलाइट कर लें। और मैं चाह रहा था कि वो एक टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन हो, एक टेलीमेडिसिन जो सेटअप है वो प्राइमरीली हो। आसान तरीका ये था कि जो पहले से प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन्हीं को एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे अब ये पॉसिबल नहीं लग रहा। तो you are required to primarily fill the FYP। FYP के लिए प्रपोजल एक छोटा सा आप लोगों से बनवा लेते हैं असाइनमेंट 3 में। क्या ख्याल है आप लोगों का? सर आइडिया अच्छा है, लेकिन एक इसमें मुझे हिंड्रेंस ये नजर आ रही है कि फिलहाल हमारे FYP के 2-3 ऑप्शंस जो हमने आपस में डिस्कस किए हुए हैं और फिलहाल हम किसी एक पे मुत्तफिक नहीं है। 2-3 हैं, अभी उस पर मजीद हम बातचीत करेंगे और डिस्कशन होगी तो फाइनलाइज करेंगे। तो इस असाइनमेंट के लिए ये जरूरी है कि हम अपना फाइनल जो भी प्रोजेक्ट है उसी का प्रपोजल दें, कोई और अगर हम सिर्फ डमी प्रपोजल दे दें इसमें? मतलब कि प्रपोजल दे दें, उसके बाद उसको कंटिन्यू भले रखें या ना रखें। हाँ, ये मेरा सवाल है, मतलब इज इट बिल्कुल सही नेसेसरी है। टू आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप प्रपोजल जी बनाएं लेकिन आप उसको कंटिन्यू ना करें, आप बाद कोई और प्रोजेक्ट कर लें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। इसमें एक जो हिंड्रेंस नजर आ रही है मुझे वो ये है कि जो ICT R&D जो है उसका टाइमलाइन आ रहा है 21 जनवरी, यानी जनवरी का जो लास्ट 21 जनवरी 20 समझ लें 20 जनवरी है। तो अगर आप लोग 20 जनवरी से पहले अगर बना के और उसको ICT R&D पे अपलोड कर देते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोग उसको लेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये साल फिर आपका फंडिंग के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो है वो लास्ट ईयर भी आपके जो सीनियर बैच है उसमें 3 प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग जो है वो बजाय अलग से टाइम लगाने के आप इसी जो सेमेस्टर है इसमें टेलीमेडिसिन के टॉपिक्स, हम कोर टॉपिक्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कवर कर लिए, तो कंप्लीट कर चुके हैं हम कोर टॉपिक्स। अब आगे जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जो है वो एडवांस या यूँ समझे इंटरमीडिएट लेवल के हैं, या जो कि आपके मुख्तलिफ डायमेंशन हैं। हम तो किताब को फॉलो कर रहे हैं, किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किसी भी टॉपिक को डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने FYP पे काम करेंगे और FYP का प्रपोजल बना लेते हैं, ठीक है, अभी आपके पास यू स्टार्ट इन 3 हफ्तों में बना लेते हैं। एक हफ्ते में आपस में डिस्कस करके एक आइडिया जो है उसको वर्कआउट करते हैं, दूसरे हफ्ते डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं और तीसरे हफ्ते में उस डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर लेते हैं, प्रेजेंटेबल कर लेते हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा जो है वो एक क्या कहते हैं ICT R&D के लिए एक अच्छा जो है वो स्टेप बन जाएगा। अच्छा, निम्रा पूछना चाह रही है जी, बेटा आप बोलें। सर मेरी ये क्वेरी थी कि इज इट नेसेसरी कि हमारा जो भी हम FYP डिसाइड करें वो टेलीमेडिसिन से ही लिंक करता हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेलीमेडिसिन के जो कंसेप्ट हैं मैं चाहूँगा कि उसमें कम से कम एक आध कंसेप्ट जो है फॉर एग्जांपल फ्यूचर डायरेक्शन भी हो सकती है कि जो है वो असल में जो FYP है ना वो आमतौर पे हम एक अच्छा FYP सेलेक्ट करते हैं। जैसे इन स्टूडेंट्स ने दौरा किया, आपके सीनियर्स बैच ने CIME जो आगा खान का है वहाँ उन्होंने देखा, फिर उनको जो इससे पहले भी 2 बैच जो है उनको मैं ले जा चुका था, लेकिन इस बैच ने जो है वो इनिशिएट लिया और इस पे काम शुरू किया।
अब वो जो उनके पास डमीज पड़े हुए हैं, यानी जो मेडिकल के इक्विपमेंट है, वो तो मल्टी मिलियन डॉलर्स, यानी यूँ समझे कि काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं। अब वो हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हम उनके सिमुलेटर बना सकते हैं, हम उनके जो वो बताते खुद भी सिमुलेटर है, हम उन सिमुलेटर्स को मज़ीद बेहतर तो नहीं बना सकते, हम उनके जैसा बना सकते हैं, उनके जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता थोड़ा बहुत हम उस तरफ एक स्टेप ले सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली मूव फॉरवर्ड, ये कोई एक ही चीज़ नहीं है। देर आर मैनी अदर एरियाज इन द बायोमेडिकल। तो आपके 3 ग्रुप बन गए हैं। आई गिव यू ए टास्क कि आप जो है वो किसी एक आइडिया को जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसको आप लेके आए एज ए पोटेंशियल FYP, और उस आइडिया को वर्कआउट करें। उसका एक डायग्राम होनी चाहिए, उस डायग्राम के अंदर जो है उसका एक छोटा सा फ्लो होना चाहिए कि ये जो आप जिस चीज़ पे काम करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आप करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, या सर फारस के पास, चूँकि वो देख रहे हैं FYP को, FYP के कोऑर्डिनेटर वो हैं, तो उनके साथ मिलके आप लोगों के जो पोटेंशियल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है उसको हम डॉक्यूमेंट करके और उसका ICT R&D में जमा करवा सकते हैं। वो अपनी टाइमलाइन चेंज नहीं करते। सर एक से ज्यादा आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज वी विल सी इन द एंड कि हम किस पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, किस आइडिया पे। तो एक से ज्यादा प्रपोजल सबमिट कर सकता है एक ग्रुप, या सिर्फ एक प्रपोजल सबमिट कर सकता है? अच्छे काम के लिए एक ही प्रपोजल पे काम करना ज़्यादा मुनासिब है। इसमें ठीक है सर। ये है ना कि आपके चूँकि 6 मेंबर हैं ना, तो मैं चाह रहा था कि 3 ग्रुप बन जाएं, और 3 ग्रुप आपने बना लिए। लेकिन जिस ग्रुप में मेंबर ज़्यादा हैं उनको फिर टास्क भी एक चैलेंज टास्क लेनी चाहिए। जिनके ग्रुप जी सर। मेंबर हैं उनको तो इतना, वो एक मॉडरेट लेवल की, और जो रुशना है वो तो एक ऐसी टास्क लेना चाहिए जिसमें एक बंदा काम करे। अब एक बंदा तो 3 बंदों का काम तो नहीं कर सकता, वो तो एक एक्सेप्शनल केस, इट इज नॉट हैपनिंग इन ऑल द टाइम। तो ग्रुप होता है वो इसीलिए होता है ताकि मिलके और टास्क को डिवाइड करके काम करें, क्योंकि फ्यूचर में तो टीम के साथ ही काम करना होता है। जी यस सर। सर बिल्कुल, पर मगर ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स और क्लास फेलोज कम है। तो आप एक एक आइडिया लेके आए और उस आइडिया पे काम करते हैं। जो रिसेंट चीज़ें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं कि हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें इस वक्त एक पेशेंट जो है या जो है उसको सेव कर सकेंगे, उसको इस क्या नाम है, जो कोविड या जो एक वबा फैली हुई है उसको उसके अगेंस्ट समझ लें, या उससे निपटने के लिए, या उससे सेफ गार्ड होने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो हेल्पफुल हो, और उसका तलब जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के साथ हो, तो इट कैन बी ए पोटेंशियल FYP। ठीक है। ओके सर, जी सर। यानी कि ग्रुपिंग जिस तरीके से हुई हुई है उसी से कर लेना, अब हम कंटिन्यू। उसी तरीके से कंटिन्यू कर लें। सिर्फ अरहम है जो आ रही है फाइनल ईयर सेमेस्टर, एक मिनट अरहम आपके जो क्लासमेट्स हैं वो क्लास अटेंड इंटरेक्टिव सेशन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? आपका वो माइक जो है ना वो अनम्यूट करना होगा। यस सर। अरहम आपके क्लासमेट्स आ क्यों नहीं रहे? सो रहे हैं क्या वो? अभी तो 11 बज गए। सर
सर मुझे आइडिया नहीं, मैंने इनको ग्रुप में मैसेज कर दिया था अभी सुबह भी, ज्वाइन कर ले। क्या आपसे डरते हैं वो, मतलब आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे? सर पता नहीं। क्योंकि कोई भी नहीं है ना, मतलब सिर्फ आप ही हैं। और वो मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं छुट्टी की उनके साथ? पता नहीं सर। ज़रा थोड़ा सा अपने ग्रुप में उनको ज़रा हिलाएं जुलाएं। अब उनका आखिरी सेमेस्टर है, ऐसा ना हो कि जब वो फील्ड में जाए तो उनके तोते उड़ चुके हों, मतलब कोई उनके पास कुछ भी ना हो। तो बेहतर है कि टाइमली जो है वो अपने आप को संभाल लें। ओके सर। मैं एक टीचर है हमारे, उनको उनके पीछे लगाता हूँ ताकि वो सबका इंटरव्यू लेंगे, क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो है अनम, आपका ग्रुप जो है उसने FYP कौन सा कर रहे हैं? सर बेबी सिम्युलेटर है। बेबी सुपरवाइजर कौन है? सैयब अंसारी। ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं कि असाइनमेंट नंबर 3, और असाइनमेंट नंबर 3 को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। और असाइनमेंट नंबर 3 को थोड़ा सा चेंज करने के बाद मेरे ख्याल में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सबमिट 1 पेज नोट्स फॉर असाइन टॉपिक फॉर रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। ओके, तो टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को असाइन कर देते हैं ताकि आप लोग जो है उस पर वर्किंग शुरू कर लें। आप लोग खुद टॉपिक ढूंढने जाएंगे ना तो यू विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स ना, तो आपको टॉपिक्स असाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। Okay. Okay, someone interested on bioelectronic devices? These are the topics, okay? इसमें से कोई एक टॉपिक जो है वो आप ले लीजिए। देर आर अदर टॉपिक्स एज वेल। ओके, सर ये असाइनमेंट के लिए टॉपिक्स है? जी असाइनमेंट 3 के लिए ना, टेक 1 एरिया फ्रॉम हियर, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फोकस ऑन 1 एरिया एंड प्रिपेयर योर, उसी एक एरिया से लिंक करते हुए आप जो है वो आगे एक छोटा जो है ना उसको अपने प्रपोजल में ऐड कर लें, ठीक है। क्या ये कर सकते हैं आप? जी सर कर सकते हैं। यस मतलब जो कर भी हम सकते अपना हैं। FYP बनाए वो ओरिएंटेड दिस टॉपिक हो, मतलब ये जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो इसके इर्द गिर्द पोटेंशियल, रिवॉल्व करता हो। ठीक है, पोटेंशियल। तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। लेकिन इस वेबसाइट पे एक चीज याद रखिएगा, ये चूंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हैं, हमें ये करना है कि इसमें से हमें देखना है कि हमारे जो लोकल पर्सपेक्टिव में कौन सी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। ऐसा ना हो ना कि कुछ चीज़ें हम सोच रहे हो कि हम कर सकें लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमारे सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं वो एक पोटेंशियल FYP जो है वो इसमें से एक एरिया सेलेक्ट करेंगे। ये जो एरियाज दिए हुए हैं, दीज आर द एरियाज ना, ओके।
सो 1 2 3 और सो ऑन। आप देखें इन द नेक्स्ट देयर आर आल्सो पेज नंबर 2 जिसमें दो ही इम्प्लांटेड बायोमेटेरियल्स हैं और कैंसर डायग्नोस्टिक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ऐसा एरिया सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपके पास जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें, ठीक है, हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। और जो रिसेंट एरियाज हैं उनमें अगर आप देखें तो ये मशीन लर्निंग है। ये रोशना बेहतर जानती है, उन्होंने एक दिन मुझे बात की थी। यस सर। रोशना बेटा, आप अपने लिए ये एरिया सेलेक्ट कर लें, मशीन लर्निंग, ठीक है। ओके सर, ओके। तो ये एरिया जो है ये आपके उसमें मैं डोमेन में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके सर, श्योर। कोई चाहे तो इनके साथ ज्वाइन कर सकते, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर बहुत सारे स्पेस है। तो ये जो इमेज है इसको मैं सेव कर लेता हूँ इन योर कोर्स फोल्डर। और इस डॉक्यूमेंट में मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया ये। और यस सर। छोटी सी लाइन जो है वो बना देते हैं आपके पास। ओके, अब दूसरे बच्चों से भी बात करूँ, उनका भी एक जो है ना वो दे देते हैं, ठीक है, एक उनको भी दे देते हैं। हमाद बेटा, आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, हमाद और वर्दा, ठीक है। ओके, हमाद, हमाद मौजूद है यस सर। और वर्दा मौजूद है। यस सर। ओके बेटा, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए इसमें कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं मुझे। इसमें न्यूरो इंजीनियरिंग भी है, सेल थेरापी भी है, डिलीवरी ऑफ ड्रग्स एंड बायोलॉजिक्स भी है, जीनोम, हिस्टोपैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर डायग्नोस्टिक है। आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या है भाई। इम्प्लांटेड बायोमटेरियल्स हैं। असल में बायोमटेरियल्स हमारे पास सिर्फ दो कोर्सेज हैं, बायोमटेरियल्स 1 एंड बायोमटेरियल्स 2। और कैंसर डायग्नोसिस भी है। आप लोग बेटा ये जो क्या नाम है, प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों का कैसा है, प्रोग्रामिंग कैसा है आप लोगों का? हमाद और वर्दा दोनों से बात कर रहा हूँ मैं। सर ज्यादा नॉर्मल है सर, ज्यादा अच्छी नहीं है। वर्दा से पूछे। नो सर, एवरेज है, मेरी प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा, एवरेज है, इसका मतलब है आपको जो है वो थोड़ा सा, अगर आपके लिए मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लूँ, टेक्नोलॉजी फॉर डायग्नोस्टिक्स, तो इज इट ओके? सर हार्डवेयर साइड ओके चल सकती है क्योंकि वो सही है, बेटर है। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है ना, तो नहीं, सॉफ्टवेयर से डरना नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आप वो रू है ना, वो हार्डवेयर तो जिसम है, रू है वो, सॉफ्टवेयर तो रू है, तो उसको भी ज़रूरत, उसको भी इतनी ज़रूरत है ना। ओके, तो ये मैं फॉर हमाद एंड वारदा जो है इनके लिए जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको मैं डॉक्यूमेंट में भी ऐड कर रहा हूँ ताकि
ओके बेटा, आप लोगों का रह गया एक, आप लोगों का भी डिसाइड कर लेते हैं। ये कौन सा आप बोले, ये पहली लाइन देखें, पहली लाइन में सर आपके अकॉर्डिंगली इसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से डोमेन्स में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? कोई ऐसा डोमेन है हर जिसमें एक में, सॉफ्टवेयर हर ना एक हो? में। देखिए बेटा, कैंसर हर एक में कर सकते जनरल है ना, कैंसर जनरल जो है हैं। जी सर। का इम्पैक्ट फैक्टर देखें आप, तकरीबन जो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर है ना उसमें आता है ये 5 है, 5 इसका इम्पैक्ट फैक्टर। और जो मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर जनरल है उनमें देख लेते हैं। यहाँ कोई एक वेबसाइट तो नहीं है जो बता रही हो। ये वाला देखेंगे, इसका इम्पैक्ट फैक्टर देखें कितना है। ये वो जर्नल है जिनका सर अगर न्यूरो 292 है। अ, तो कैंसर रिसर्च जो है ना इस वक्त, उस पे सबसे ज्यादा जो है ना वो जो वैल्यू दी जा रही है दुनिया में, वो कैंसर रिसर्च पे है। न्यूरो जी सर। के न्यूरो के जो जर्नल है उनका, नहीं सर मैं पूछ रही थी अगर हम और न्यूरो साइड पे या इम्प्लांटेड बायोमटेरियल साइड पे जाना चाहें। ओके, इम्प्लांटेबल भी सही है। सर आप बेटर गाइड कर सकते हैं, जिसका ज्यादा स्कोप है आप हमें उसकी तरफ स्टेयर करते हैं, क्योंकि अपने पर्सनल इंक्लिनेशन शो करेंगे यहाँ पे। इसमें जो है ना, अगर आप कैंसर डायग्नोसिस पे जाएंगे ना, तो कैंसर डायग्नोसिस जो है ना उसमें तो आपको जो इमेजेस हैं उन्हीं से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी जो इमेज प्रोसेसिंग है उस पर काम करना पड़ेगा। इम्प्लांटेड जो बायोमटेरियल्स है, इसमें फिर आपको जो जो बायोमटेरियल की साइड है ना उस पे और उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले पेज पे भी देख लेते हैं। बेटा इंटरनेट बंद हो गया।